پرانے وقتوں کی بات ہے جب زندگی کا انداز بہت سادہ تھا اور لوگ اپنی محنت پر فخر کرتے تھے۔ ایک وسیع اور سنسان صحرائی علاقے میں جہاں شہر کا شور نہیں پہنچتا تھا، دو قریبی دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام سلیم تھا اور دوسرے کا فاروق۔ دونوں پیشے سے مزدور تھے، دل کے صاف اور بہت محنتی، مگر دولت اور دنیاوی آسائشوں سے کوسوں دور۔ ان کا معمول تھا کہ ہر صبح سورج نکلنے سے بھی پہلے وہ کام کی تلاش میں نکل پڑتے۔ دن بھر کی سخت مشقت کے بعد جب شام کی تھکن انہیں گھیر لیتی تو وہ کسی درخت کے گھنے سائے تلے بیٹھ کر اپنی سادہ روٹی ایک دوسرے سے بانٹ کر کھاتے تھے۔ ان کی دوستی سادگی، بے پناہ خلوص اور ایک گہری خاموش وفاداری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ لیکن وقت، جو کبھی ایک سا نہیں رہتا، نے اپنی چال چلی۔ ایک دن ان کی اس مضبوط دوستی میں ایک درار پڑ گئی۔ ایک معمولی سی بات نے اتنا طول پکڑا کہ ان کے درمیان ایک سخت جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ انہیں انصاف کے لیے شہر کے قاضی کی عدالت کا رخ کرنا پڑا۔ تنازع کی بنیادی وجہ ان کی مزدوری کا معاوضہ تھی، جس پر دونوں ہی اپنا اپنا حق جتلا رہے تھے۔ سلیم کا دعویٰ تھا، میں نے زیادہ محنت کی ہے، اس لیے زیادہ حصہ میرا بنتا ہے۔ فاروق نے فوراً اس کی تردید کی، نہیں، میں نے بھی کام برابر کیا ہے، بلکہ شاید زیادہ ہی، اس لیے مجھے زیادہ معاوضہ ملنا چاہیے۔ قاضی، جو انصاف کے تخت پر بیٹھا تھا، ان دونوں کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے اور اپنے حق کا دعویٰ کرنے پر بضد تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں ہی اپنی اپنی بات پر اتنے پختہ تھے کہ قسم کھانے پر بھی تیار تھے۔ قاضی کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ بظاہر دونوں ہی بے قصور اور سچے نظر آ رہے تھے اور کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود نہیں تھا جس کی بنا پر فیصلہ کسی ایک کے حق میں کیا جا سکے۔ معاملہ انتہائی پیچیدہ تھا اور نہ کوئی گواہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسا نشان جو سچائی تک پہنچنے میں مدد دے سکے۔ آخر کار قاضی نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایک منفرد حل نکالا۔ اس نے خزانے سے کچھ اضافی اشرفیہ منگوائے اور پھر جو رقم دونوں مزدوروں نے اپنی اپنی محنت کے بدلے مانگی تھی، قاضی نے وہ پوری کی پوری دونوں کو دے دی۔ بظاہر یہ ایک منصفانہ فیصلہ لگ رہا تھا، دونوں کو وہی ملا جو وہ چاہتے تھے، لیکن قاضی کا دل مطمئن نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قاضی کا اصل فرض صرف معاملے کو ختم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ حق اور ناحق میں تمیز کر کے انصاف کو اس کے حقیقی انجام تک پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر جھوٹ کو سچ سے الگ نہ کیا گیا تو مستقبل میں ایسے جھگڑوں کے دروازے دوبارہ کھل سکتے ہیں اور مجرم اپنے گناہ سے بچ نکلے گا۔ اسی سوچ کے تحت قاضی نے اگرچہ اس معاملے کو بظاہر ختم کر دیا تھا، لیکن دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اس سچ تک ضرور پہنچے گا۔ اسے پختہ یقین تھا کہ دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے اور جو بھی قصوروار ثابت ہوگا اسے اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ یوں وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ زندگی اپنی ڈگر پر روا دوا تھی اور اس معاملے کو لوگ تقریباً بھول چکے تھے، لیکن قاضی کے ذہن میں یہ سوال ایک انسلجھی پہلی کی طرح موجود تھا۔ مگر ایک دن جب قاضی اپنے معمول کے فرائض انجام دے رہا تھا، وہی پرانی تکرار ایک بار پھر لوٹ آئی، لیکن اس بار پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ۔ سلیم غصے سے بھرا ہوا اور چہرے پر غم، دکھ اور غصہ ایک ساتھ لیے قاضی کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا لہجہ کرخت اور آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔ سلیم نے قاضی کے سامنے فریاد کی، قاضی صاحب، میں نے فاروق کو 10 اشرفیہ قرض کے طور پر دی تھی۔ کئی دن ہو چکے ہیں، میں نے بار بار اسے یاد دلایا مگر وہ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ سراسر فریب اور دھوکہ دہی ہے۔ قاضی نے فوراً فاروق کو بلوایا تاکہ اس کی بھی سنی جا سکے۔ فاروق حاضر ہوا تو اس نے سلیم کے دعوے کی مکمل تردید کرتے ہوئے بالکل الٹا دعویٰ کیا، قاضی صاحب، یہ تو الٹا مجھے جھوٹا بنا رہا ہے۔ اصل میں نے اسے 10 اشرفیہ قرض دی تھی۔ اب یہ چالاکی سے کہتا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا ہے اور اوپر سے 10 مزید اشرفیہ مانگ رہا ہے۔ انصاف کیجئے قاضی صاحب، یہ شخص میرے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ سلیم جھٹ سے طیش میں آ کر بول اٹھا، دیکھیے قاضی صاحب، کیسا جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص۔ مجھ سے قرض لیا اور اب الٹا مجھ پر ہی الزام لگا رہا ہے۔ میرا قرض واپس کرنے کی بجائے اب مجھے ہی دھوکہ دینے لگا ہے۔ یہ سراسر بے ایمانی اور فریب ہے۔ قاضی دونوں کو بغور دیکھتا رہا۔ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو چکا تھا۔ دونوں اپنی اپنی بات پر سختی سے بضد تھے اور دونوں ہی خود کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ جھوٹ اور سچ کے درمیان ایک بار پھر ایک گہری خلیج حائل ہو گئی تھی جسے عبور کر کے اصل حقیقت تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ قاضی نے جب یہ نیا مقدمہ سنا تو ایک بار پھر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اب کی بار معاملہ صرف مزدوری کے معمولی تنازع کا نہیں تھا، بلکہ قرض جیسی نازک چیز کا سوال تھا جو معاشرتی تعلقات کی بنیاد ہوتی ہے، اور دونوں کا دعویٰ ایک دوسرے کی مکمل نفی کر رہا تھا۔ قاضی بار بار سوچنے لگا، آخر کون جھوٹ بول رہا ہے اور اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھا کر سچ تک کیسے پہنچا جائے۔ اس نے اپنے ماضی کے تجربات پر غور کیا، اپنی دانش کو استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر قاضی نے ایک خاص اور منفرد تدبیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔
इसने दोनों फ्रीकैन को एक दिन की मजीद मोहलत दी और कहा कि कल आकर दोबारा पेश हो जाओ ताकि वो मजीद गौर करके कोई हतमी फैसला कर सके। इसी रात जब शहर की गलियां सन्नाटे में डूब चुकी थीं और चांद अपनी चांदनी बखेर रहा था, काजी ने आम लोगों जैसे कपड़े पहने। इसने अपना चेहरा इस तरह छुपाया कि कोई इसे पहचान ना सके और भेस बदल कर चुपके से सलीम के घर के करीब जा पहुंचा। माहौल पर शाम का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। गिल्ली मुकम्मल तौर पर सुनसान थी और आसपास दूर दूर तक कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ रात की सरसराहट और हवा की सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। काजी ने अपने साथ एक कपड़े का थैला लिया हुआ था जिसमें 50 चमकदार अशरफियां थीं। इसने वो थैला बड़ी होशियारी से सलीम के दरवाजे के बिल्कुल करीब फेंका और खुद कुछ फासले पर जाकर एक अंधेरी जगह में बैठ गया ताकि वो देख सके कि आगे क्या होता है। वो जानता था कि इंसान का रद्द-ए-अमल ही इसके अंदर छुपे सच को जाहिर करता है। कुछ ही देर बाद सलीम के घर का दरवाजा आहिस्ता से खुला। सलीम बाहर निकला और जब इसकी नजर जमीन पर पड़े थैले पर पड़ी तो वो चौंक गया। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई जो काजी ने बखूबी महसूस कर ली। सलीम तेजी से आगे बढ़ा, थैले को उठाया, आंदेर अलिफाडेर देखा कि कोई इसे देख तो नहीं रहा और फिर फौरन दरवाजे के अंदर चला गया और पीछे से दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। काजी ने यह सारा मंजर मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से देखा। इसके दिल में एक हल्की सी ठेस उठी मगर वो अपने इरादे पर कायम रहा। फिर वो वहां से चुपचाप उठकर फारूक के घर की तरफ बढ़ा। वहां भी काजी ने इसी तदबीर को दोहराया। इसने अशरफियों का थैला फारूक के दरवाजे के पास फेंका और खुद इसी तरह एक गोशा गुमनामी में छपकर फारूक के रद्द-ए-अमल का इंतजार करने लगा। कुछ देर में फारूक के घर का दरवाजा खुला। फारूक बाहर निकला। इसकी नजर थैले पर पड़ी। इसने थैला उठाया, आंदेर अलिफाडेर देखा और हैरानी के मिले जले तासुरात के साथ वापस अंदर चला गया। काजी ने यह सब देखा और समझ गया कि इसके मंसूबे का पहला हिस्सा कामयाब हो चुका है। अब वक्त था दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने का। रात का अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था। बादलों की गरज सुनाई दे रही थी जैसे आसमान खुद इस ड्रामे का गवाह बन रहा हो। फिजा में ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे जो इंसानी फितरत के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। काजी ने फारूक के दरवाजे पर जाकर आहिस्ता से दस्तक दी। इसकी दस्तक में एक मुसाफिर की आजिजी और दरमानगी नुमाया थी। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और फारूक सामने आ गया। काजी ने नरमी से कहा, भाई साहिब, मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, शहर से बहुत दूर से आया हूँ। बारिश होने वाली है और मेरे पास सर छुपाने को कोई जगह नहीं। क्या तुम मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हो? फारूक ने काजी को गौर से देखा मगर चूंकि काजी ने अपना भेस मुकम्मल तौर पर बदला हुआ था वो इसे पहचान ना सका। फारूक के चेहरे पर कोई शक आजेजे का नहीं थी बल्कि मेहमान नवाजी और हमदर्दी के जज्बात नुमाया थे। फारूक ने बेझिझक दरवाजा पूरा खोला और कहा, आइए भाई, अब जैसे मुसाफिर के लिए मेरा घर हाजिर है। बारिश में बाहर रहना कहाँ का इंसाफ है? ये तो हमारी इंसानियत की ताहीन होगी। फारूक ने इसे अंदर आने की दावत दी और इसे आरामदेह जगह पर बिठाया। काजी को अंदर ले जाया गया। कमरे में सादगी और मेहमान नवाजी का ऐसा माहौल था जो काजी ने कम ही देखा था। फारूक ने अपने सादा अंदाज में बातें शुरू की। इसने काजी से इसका हाल अहवाल पूछा, कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है, इसकी कहानी क्या है। फिर फारूक ने खूब भी अपने घर की हालत, रोजमर्रा की मेहनत और जिंदगी के मामूलात के बारे में बताया। इसकी बातों में कोई बनावट नहीं थी बल्कि एक खिले दिल और साफ नीयत का इजहार था। काजी हर लम्हा फारूक के रवैये को गौर से देखता रहा। इसके हर लफ्ज, हर हरकत और इसके चेहरे के तासुरात को अपने दिल में नोट करता रहा। वो फारूक के अखलाक और मेहमान नवाजी से मुतासिर हो रहा था। फिर फारूक ने मेहमान नवाजी का सबूत देते हुए एक सादा सा खाने का बंदोबस्त किया। रोटी और दाल, मगर इसमें खुलूस का जायका था। दोनों ने मिलकर खाना खाया। काजी ने इस सादगी और खुलूस को महसूस किया जो फारूक की शख्सियत का हिस्सा था। खाने के बाद काजी ने एक मंसूबा बनाया। इसने अपनी जेब पर हाथ फेरा, फिर अचानक चेहरे पर परेशानी तारी की और हैरत से बोला, आ अल्लाह, आवाम रसवात, फरूक फौरन रिशन वरबौलन, आवा बिसाहिब। खैरियत तो है, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? काजी ने थोड़ा रंजीदा लहजे में कहा, बेटा, मेरे पास अशरफियों का एक थैला था, सारी जमा पूंजी इसी में थी। लगता है कहीं रास्ते में गिर गया, चोरी हो गया है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ इसी में था, मैं कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचगा? फारूक ने काजी की बात सुनी और थोड़ा सोच कर बोला, भाई साहिब, मुझे रास्ते से एक थैला मिला है, लेकिन इससे पहले ये बताए इसमें कितनी अशरफियां थीं और कैसी दुखती थीं? फारूक ने यह सवाल इसलिए किया ताकि वो काजी की सच्चाई को परख सके। काजी ने इत्मीनान से जवाब दिया, बेटा, इस थैले में तकरीबन 50 अशरफियां थीं, सारी सोने की थीं। मेरी तमाम जिंदगी की कमाई और पूंजी इसी में थी। फारूक ने काजी की बात सुनी तो इसके चेहरे पर एक इत्मीनान की मुस्कुराहट फैल गई। वो फौरन उठा, कमरे के एक कोने में गया जहां इसने थैला छुपा कर रखा था। इसने इसे खोला, गन्ना और देखा कि वाकई 50 अशरफियां मौजूद थीं। बगैर कोई सवाल किए,
बगैर किसी हिचकिचाहट के इसने थैला वापस लाकर काजी को दे दिया। इसके चेहरे पर कोई लालच या हसद नहीं था, बल्कि एक गहरा इत्मीनान था कि इसने हक अदा किया। काजी ने दिल की गहराई से फारूक को देखा। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इसने बहुत कम लोगों में देखी थी। वो इसकी ईमानदारी, बेलोस मेहमान नवाजी और बेपनाह खुलूस से बेहद मुतासिर हुआ। काजी के दिल से बेसाख्ता दुआएं निकले, बेटा, तुम जैसे सच्चे और नेक लोग दुनिया में कम होते हैं। अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, रिस्क दे और हमेशा सच्चाई पर कायम रखे। तुम्हारी ये दियानतदारी तुम्हारे लिए कामयाबी के दरवाजे खोलेगी। फारूक ने आजिजी से मुस्कुरा कर सर झुका दिया। इसकी आंखों में इत्मीनान और शुक्रगुजारी का गहरा एहसास था। काजी उठने लगा तो फारूक ने अदब से कहा, भाई साहिब, रात का वक्त है, अंधेरा है, बाहर बारिश भी हो सकती है। أرجاء صبح أجال ونرلجنن। रात का सफर खतरनाक हो सकता है, मगर काजी ने नरमी से बहाना बनाकर कहा, नहीं बेटा, मुझे अभी जाना जरूरी है। एक बहुत अहम काम बाकी है जो मुलतवी नहीं हो सकता। और वो फारूक के घर से खामोशी से निकल गया। काजी अब सीधा सलीम के घर पहुंचा। वहां जाकर इसने दरवाजा खटखटाया। अभी दस्तक दी ही थी कि अंदर से एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, कौन हो तुम? इस वक्त रात में यहाँ क्या लेने आए हो? आराम नहीं करने देते क्या? काजी ने तहम्मुल से जवाब दिया, भाई साहिब, एक जरूरी काम है। बड़ा करम दरवाजा खोली, कुछ बात करनी है। सलीम गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर निकला और तेज लहजे में बोला, जल्दी बताओ क्या काम है? रात के वक्त भी चैन नहीं है तुम लोगों को? क्या मुसीबत है? इसके चेहरे पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन नुमाया था। काजी ने नरमी से कहा, भाई साहिब, मैं एक मुसाफिर हूँ, शहर से दूर से आया हूँ। आज की रात गुजारने के लिए किसी पनाह की तलाश में हूँ। क्या आपके घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? मैं ज्यादा जगह नहीं लूंगा, सलीम ने बेरुखी से जवाब दिया। इसके लहजे में ना हमदर्दी थी और ना ही मेहमान नवाजी। नहीं, मेरे घर में तो इतनी तंगी है कि हम खुद बमुश्किल सोते हैं। ارتم برلوتو ما جاء। जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। मेरा घर कोई सराय नहीं है। इसके अल्फाज में सख्ती और बेमरवती साफ झलक रही थी। काजी ने तहम्मुल से सर हिलाया और एक लम्हे बाद बोला, ठीक है भाई साहिब, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक और बात है। शाम को इसी गिल्ली में मेरा एक थैला गुम हो गया है जिसमें 50 अशरफियां थीं। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था, मुझे शक है कि वो यहीं कहीं गिरा होगा। मैंने बहुत खून चुका हूँ मगर नहीं मिला। काजी की बातें सुनते ही सलीम का चेहरा फौरन सुर्ख हो गया और वो फौरन बदतमीजी पर उतर आया। गुस्से से बोला, क्या बकवास है ये? تمنا أتو أب مجر الزمل آي أو। शर्म रो, यहाँ तो सिर्फ मेरा ही घर है और मैंने कोई थैला नहीं देखा। मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दफ हो जाओ यहाँ से। इसकी आवाज ऊंची थी और इसकी आंखों में शदीद झुंझलाहट थी। काजी ने यह सब सुना और खामोशी से इसके घर से रुखसत हो गया। काजी की इस पूरी तहकीक, छानबीन और खामोश मुशाहदे के पीछे एक गहरा मकसद छुपा हुआ था जिनसे अब बहुत कुछ सीख जाओगे। वो इंसान के असल किरदार को परखना चाहता था, इसके अंदर छपी सच्चाई और झूठ को बेनकाब करना चाहता था। लिहाजा काजी रात के वक्त फारूक और सलीम के रवैये को बगौर देखने के बाद मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से अपने घर वापस लौट आया। सारी रात इसने जो कुछ देखा और सुना, इसे अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लिया। अब फैसला करने का वक्त था, एक ऐसा फैसला जो ना सिर्फ एक मुकदमे को खत्म करे बल्कि हक और नाहक को वाजे भी करे। सुबह होते ही जब सूरज अपनी पहली किरणें बखेर रहा था, काजी दरबार में जा बैठा। दरबार में लोगों की आमद शुरू हुई और कुछ ही देर में सलीम और फारूक को भी दरबार में पेश कर दिया गया। काजी ने संजीदा लहजे में दोनों की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो उन दोनों के अंदरूनी सच को जान चुकी थी। इसने कहा, मैं एक बार फिर तुम दोनों को खबरदार कर रहा हूँ। अब मुझे सच और झूठ दोनों का पता चल चुका है। मेरे पास आंखों देखा सबूत मौजूद है जो मैं इनकार करने वाले के सामने पेश करूंगा। लेकिन अगर कोई अपनी गलती मान ले, सच सच बता दे, तो शायद इसके साथ नर्म रवैया इख्तियार किया जाए और इसे सजा से बचने का यही वाहिद रास्ता मिलेगा। काजी ने यह मौका इसलिए दिया ताकि मुमकिन हो तो मुजरिम खुद ही अपनी गलती का एतराफ कर ले। ये सुनकर सलीम फौरन बोल उठा। इसका लहजा ऊंचा और जबरदस्ती से भरा हुआ था। इसकी आंखों में ठिठाई नुमायाँ थी। قاضي साहिब, मुझे तो आपका पिछला फैसला बिल्कुल ठीक लगा था। मैं आज भी वही कहता हूँ जो कल कहा था। मुझे इंसाफ चाहिए, झूठा सिर्फ फारूक है। इसने मुझसे कर्ज लिया है और अब इनकार कर रहा है। सलीम ने अपनी बात पर ओढ़ने की पूरी कोशिश की। काजी ने खामोशी से सलीम को देखा। इसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था और ना ही मायूसी। फिर इसने फारूक की तरफ रुख किया। फारूक ने अदब से सर झुकाया। इसके चेहरे पर इत्मीनान और मासूमियत थी। इसने कहा, काजी साहिब, आपको इख्तियार है, फैसला आप ही करे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। हम दोनों ने अपनी बात कह दी है, अब आप ही हक और बातिल के दरमियान फर्क करे। मैं हर फैसले को कबूल करूंगा। फारूक के लहजे में सच्चाई की आजिजी और रजामंदी नुमायाँ थी।
लिहाजा काजी ने सलीम की तरफ नरमी से देखते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, साफ साफ बता दो सच किया है। ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है। मगर सलीम अपनी जिद पर उड़ा रहा। वो मुसलसल अपनी पुरानी बात को हित धर्मी से दोहराता रहा। काजी साहिब, मैं सच्चा हूँ, मैंने फारूक से कोई कर्ज नहीं लिया और ना ही अब की कोई अशरफिया देखी है। इसने झूठ पर कायम रहने का पुख्ता इरादा कर रखा था। काजी खामोशी से सुनता रहा। इसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो ये बता रही थी कि वो सब कुछ जान चुका है। अब मजीद इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं थी। बिलाखिर काजी ने वो सब कुछ जाहिर कर दिया जो रात को इसने खुद अपनी आंखों से देखा था और अपने कानों से सुना था। काजी ने सलीम के घर पर अपने चुपके से थैला फेंकने और फिर सलीम को थैला उठाकर अंदर ले जाते हुए सारा मामला तफसील से बयान कर दिया। इसने फारूक के घर के वाक़ये का भी जिक्र किया और कैसे फारूक ने ईमानदारी से अशरफियों का थैला वापस किया था। ये सुनते ही फारूक हैरत और खुशी से काजी की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों में तशक्कुर का गहरा एहसास था, जबकि सलीम का चेहरा पहले पीला पड़ा, फिर सुर्ख हो गया। शर्मिंदगी और खौफ के मिले जले तासुरात इसके चेहरे पर नुमायाँ थे, मगर फिर भी वो अपनी बात पर कायम रहने की कोशिश करता रहा और हित धर्मी से बोला, काजी साहिब, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई थैला नहीं लिया और ना ही फारूक से कर्ज लिया। ये सब झूठ है। इसकी आवाज में काम थी। अब काजी के लिए फैसला करना आसान हो गया था। इसने फारूक को तमाम इल्जामात से बुरी कर दिया और इसकी ईमानदारी और सच्चाई की भरपूर तारीफ की, और सलीम पर झूठ बोलने, धोखाधड़ी और चोरी का जुर्म साबित होने पर सख्त सजा सुना दी। सलीम को कुछ दिनों के लिए सख्त मशक्कत वाली मजदूरी की सजा दी गई ताकि वो अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सके। चंद दिन बाद जब सलीम सख्त मशक्कत वाली सजा का कुछ हिस्सा भुगत चुका था तो काजी ने इसे दोबारा बुलाया। सलीम अब टूट चुका था। इसका सर शर्म से झुका हुआ था, लहजा टूटा हुआ और दिल नदामत से भरा था। इसने धीरे से कहा, काजी साहिब, गुनाहगार मैं ही हूँ। मैंने फारूक से कर्ज लिया था और रात को वो थैला भी मैंने उठाया था। मैंने आपसे झूठ बोला। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे मुआफ कर दीजिए। काजी ने इसकी बात सुनकर सिर्फ सर हिलाया। ये पूरी तहकीक दरअसल काजी किसी और अजीम मकसद के लिए कर रहा था। इसका खास मुशीर, जो काजी के अहम राजों का अमीन था और जिस पर काजी को मुकम्मल भरोसा था, कुछ अरसा कबल वफात पा चुका था। काजी को एक ऐसे सच्चे, ईमानदार और काबिल एतमाद शख्स की तलाश थी जो न सिर्फ वफादार हो बल्कि इसकी कुर्बत और एतमाद का अहल भी हो। वो चाहता था कि इसका नया मुशीर इखलाकी तौर पर इतना मजबूत हो कि वो किसी भी हाल में सच्चाई का दामन ना छोड़े। जब पूरी तहकीक के बाद काजी को मुकम्मल यकीन हो गया कि फारूक ही सबसे सच्चा और बाकिरदार इंसान है, तो इसने फारूक को सरकारी तौर पर अपना मुशीर खास मुकर्रर किया। ये एक ऐसा ओहदा था जो आला तरीन दियानतदारी, जहानत और वफादारी का तकाजा करता था। साथ ही काजी ने इसे एक बड़ी तनख्वाह और एक खूबसूरत, कुशादा रहाइश भी अता की जो इसकी तमाम बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करती थी। फारूक के लिए यह सब किसी ख्वाब से कम ना था। वो जो कल तक एक मामूली मजदूर था और रोजाना की मेहनत पर गुजारा करता था, आज काजी का करीब तरीन साथी बन चुका था। एक ऐसा साथी जिस पर काजी को मुकम्मल भरोसा था। ये सब सिर्फ इसकी गैर मुतज़लज़ल ईमानदारी, सच्चाई और सब्र का नतीजा था। इसने लालच और झूठ के सामने सर नहीं झुकाया था और इसके सिले में इसे वो मिला जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और सलीम को इसके झूठ और लालच के बदले जलालत और पशेमानी की जिंदगी मिली। वो अपनी गलतियों और बेईमानी की वजह से मुआशरे में अपना वकार खो बैठा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा और दायमी सबक सिखाती है कि सच्चाई इंसान का सबसे कीमती जौहर है। ये एक ऐसा हुनर है जो इंसान को न सिर्फ दुनिया में इज्जत और वकार अता करता है, बल्कि आखिरत में भी इसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलता है। जो शख्स दिल से सच्चा और साफ होता है, जो अपनी जुबान और अपने अमाल में सच्चाई को अपनाता है, वो चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, वक्त आने पर अल्लाह ताला इसे इज्जत, कामयाबी और बुलंद मकाम जरूर अता करता है। सच्चाई के वसीले से ही आपको वो मकाम मिल सकता है जो आप शायद इल्म, ताकत और दौलत से हासिल ना कर सके। ये सच्चाई ही है जो इंसान को अंदरूनी सुकून और इत्मीनान देती है। अगर फारूक भी इस मौका पर झूठ का सहारा लेता, अगर वो काजी का थैला अपने पास रख लेता, कर्ज के मामले में झूठ बोलता, तो शायद वो भी आज इबरत का निशान होता। वो कभी भी काजी का मुशीर खास ना बन सकता और ना ही इसे वो इज्जत और दौलत हासिल होती जो इसे मिली। इस कहानी का मरकजी ख्याल यही है कि सच्चाई ही तरक्की और कामयाबी का वाहिद रास्ता है। ये एक ऐसी बुनियाद है जिस पर एक मजबूत और काबिल एहतराम जिंदगी की इमारत खड़ी की जा सकती है। एक सच्चा इंसान कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि इसकी सच्चाई ही इसकी सबसे बड़ी ताकत और ढाल होती है। वो दुनिया की हर आजमाइश का सामना सच्चाई की तलवार से करता है और आखिरकार फातेह बनकर उभरता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से जरूर कुछ गहरा और देरपा सबक सीखा होगा।